بریک کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے ذرا آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ باقی ہے اور 86 ارکان نے اب تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. ووٹ کاسٹ نہ کرنے والوں کا تعلق ANP پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہے. اسی پر بات کریں گے. بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طارق آفاق صاحب، صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ سامنے آ رہی ہے ووٹ نہ کاسٹ ہو پانے کی؟ دیکھیں، یہاں پہ جو پولنگ ہو رہی ہے اور اس کی سسروی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک ہی پولنگ بوتھ بنایا ہوا ہے اور اس پولنگ بوتھ پر بہت زیادہ رش ہے. اس رش کی وجہ سے بہت سارے جو ارکان اسمبلی ہے اس وقت وہ ووٹ پول کرنے سے ابھی رہے ہیں. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق یہاں پہ جو بندے حال کے اندر آ گئے ہیں اور تو پھر ان کو جو نا ان کے لیے پھر ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے گا. تو 5 بجے تک چونکہ پولنگ کا ٹائم ہے تو 5 بجے تک جتنی بھی ارکانی اسمبلی نے ووٹ اپنا ڈال دیا تو وہ ڈال دیں گے. اور اس کے بعد جو ارکانی اسمبلی رہ گئے ہیں اور لیکن وہ پولنگ بوتھ کے اندر اسٹیشن کے اندر ہی ہو تو پھر ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا. تو یہ ٹائم جو نا ممکن ہے کہ 5 بجے سے جو نا بڑھ جائے 5:30 پونے 6 تک بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو نا پھر گنتی کا عمل شروع ہوگا. اور چونکہ یہاں پہ یہ بھی تھا، اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ شاید ایک بیلٹ پیپر جو نا باہر نکالا جائے، تو اس خدشے کے پیش نظر یہاں پہ الیکشن کمیشن. اچھا طارق آفاق صاحب، یہ بتائیے گا 7 گھنٹے پولنگ کو گزر چکے ہیں، کیا جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، جان بوجھ کر تو ڈیلے نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ایک ہی پولنگ بوتھ انہوں نے بنایا اور اس پہ رش بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ سسروی کا شکار ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے جو نا کوئی تاخیری حربے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے کسی ایک جماعت کو پہنچا جائے گا. جہاں تک تعلق ہے اس کا سیاسی جماعتوں کا، حکومت کو اور اپوزیشن کا، تو حکومت تو کافی جو نا پرجوش بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی باڈی لینگویج سے بھی جو نا بڑے اطمینان کا ایک جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے. اور وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے کہ چونکہ ان کا یہاں پہ اکثریت بھی ہے اور وہ اپنے تمام اراکین اسمبلی کو انہوں نے اپنا انٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے، ان کے محفوظ بنایا ہوا، اور جو مطلوبہ نتائج ہے وہ ان کے انشاءاللہ حق میں آئیں گے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو اپوزیشن کے یہاں پہ جو باڈی لینگویج ہے اس سے تھوڑا سا جو نا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو جو نا وہ مطلوبہ جو نتائج ہے ابھی اس کے حصول میں اور اس تک رسائی میں جو نا کافی مشکلات پیش نظر آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو سسروی کا جو پولنگ جو سسروی کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجہ کوئی تاخیری حربہ نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پولنگ بوتھ ہے اور اس پہ رش بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے ابھی تک یہاں پہ 85 جو ارکانی اسمبلی ہے وہ اپنا ووٹ پول کر چکے ہیں اور ابھی تقریباً کچھ 60 کے قریب جو ہے بھی باقی ہے. تو ایک گھنٹہ جو ہے نا پولنگ کا بھی ہے باقی، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا اگر کوئی MPs رہ گیا ہے پولنگ سے تو اس کے لیے جو ہے نا ٹائم میں جو ہے نا توسیع کی جائے گی، ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو یہاں پہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کر لیں. جی ٹھیک ہے طارق آفاق صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 5 بجے تک تو پولنگ کا وقت ہے، لیکن جو لوگ رہ جائیں گے تو پھر 5 بجے کے بعد بھی وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اسمبلی کی حدود میں رہے. ایک ہی پولنگ بوتھ یہاں پر بنایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے رش یہاں پر، اور 59 کے قریب ارکان ایسے ہیں جنہیں ابھی ووٹ اپنا کاسٹ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ تحریک انصاف KP سے سیٹیں حاصل کر لے گی 10. انہوں نے فگر دیا ہے کہ 10 نشستیں حاصل کرے گی. اپوزیشن نے کوشش تو بہت کی لیکن ہمارا کوئی رکن نہیں بکے گا. پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا، سن لیتے ہیں. الحمدللہ میں پرامید ہوں ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا. جو میری ٹیم ہے اور جو سکور میرا بنتا ہے، جو حق میرا بنتا ہے، وہ تقریباً 10 سیٹیں ہماری میرٹ پہ آنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا گو ہے اور مجھے اپنے MPs پہ یقین ہے کہ ہم 10 سیٹیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور بھی میرٹ پہ. اس وقت خیبر پختونخوا میں ہماری سکور 102 ہے، 95 ہم ہے اور ہمارے ساتھ باپ ہے اور 3 کوئی آزاد امیدوار یا آزاد MPs ہمارے ساتھ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کھلاڑی انشاءاللہ نہیں بکے گا. مجھے پتہ ہے یہ عمران خان کی سپاہی ہے اور میں ان کا یہاں پر میں ان کا کپتان ہوں، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی نہ میرے سامنے کوئی چیز آئی ہے کہ PTI کا کوئی MP کسی سے ڈیمانڈ کر لے. باقی لوگوں نے کافی ٹرائی کی اور وہ عبدالسلام کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے جو کل اس پہ TV پہ چلا تھا. انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. تو محمود خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 کے قریب سینیٹرز یہاں سے منتخب ہو جائیں گے. طارق آفاق بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق آفاق صاحب، محمود خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 میں سے 10 سینیٹرز وہ منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ شوکت یوسف زئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ 6 سے 7 وہ سینیٹرز یہاں سے بنوا پائیں گے. تو کون زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ محمود خان جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ دعویٰ پورا ہو سکتا ہے؟ 10 سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟
देखिए इस वक्त फवाद मुतज़ाद दावे हो रहे हैं, अपोजिशन की तरफ से भी जो ना दावा हो रहा है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे 4 नशिस्तें जो ना आसानी के साथ निकाल लेंगे, 2 जनरल की, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की। अच्छा। और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, तो हुकूमत जो महमूद खान का दावा था उसमें जो ना ज़्यादा सदाकत इसलिए भी नज़र आती है कि जो कैलकुलेशन उन्होंने कर रखी है कि उनके 94 उनके अपने अरकान हैं, 4 उनके साथ जो ना बाप के मिल गए, 98 हो गए, और इस तरीके से जो ना एक काफलीग का उनके साथ शामिल है और 3 आज़ाद अरकान, तो 102 की जो तादाद बनती है उस 102 की तादाद में ये आसानी के साथ जो ना ये अपनी 5 जनरल पे नशिस्तें निकाल सकते हैं, 2 जो है ना उनकी टेक्नोक्रेट पर भी निकाल सकते हैं और खवातीन पर भी जो ना निकाल के लिए 3 नशिस्तों पहले ही जो ना वो जीत जाएंगे। तो इस हवाले से अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि 10 के करीब जो वो नशिस्तें आसानी के साथ निकाल लेंगे और 11वीं जो नशिस्त है उसके लिए भी वो कोशिश करेंगे कि वो भी निकल जाए। तो उस सूरत हाल में अगर आप देखें, बाप का जो नुमाइंदा है, उम्मीदवार है यहाँ पे ताज मोहम्मद अफरीदी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी जो ना वो मुतमईन थे। उनका भी ये भी ख्याल था कि शायद हम जो ना अपने 19 जो वोट दरकार होते हैं यहाँ पे एक सेनेटर के इंतखाब के लिए, तो उनका ये दावा है कि वो जो है ना उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, मुमकिन है 24-25 के करीब जो है ना वोट मिल जाए। तो उस दावे को देखते हुए जो ना ये कहा जा सकता है, अब दावे की तस्दीक तो अभी नहीं की जा सकती, 5 बजे तक का इंतजार करना होगा। तारिक आफाक साहब, जिस तरह हमने कौमी असम्बली में भी देखा कि आसिफ अली जरदारी का बैलेट पेपर ज़ाया हुआ, शहरियार आफरीदी का वोट ही ज़ाया हो गया, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो कुछ ऐसी सूरत हाल देखने में नहीं आई। नहीं, अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और अभी तक जो ना हमें कोई इतलात नहीं है। एक तो ये कि पोलिंग बूथ के अंदर चूंकि मीडिया को एक्सेस नहीं है, वहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई कि यहाँ पे कोई वोट मुस्तरद हो चुका हो या किसी का वोट जो ना वो ज़ाया हो चुका हो। हाँ, गिनती के अमल में अगर किसी का वोट जो ना मुस्तरद हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन गिनती से पहले जो ना हम ये नहीं कह सकते जैसे शहरियार अफरीदी का वोट ज़ाया हो गया था। तो इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे KB असम्बली में नहीं है, न हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से। हाँ, यह है कि स्ट्रेटजी के मुताबिक वो अपने अरकान को ला रहे हैं और उनको महफूज बना के यहाँ पे, और वो अपने पैनल को वोट दे रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह जो अपोजिशन के अरकान हैं वो भी जो ना उन्होंने भी यहाँ पे डेरे डाले हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी बारी आने पे वो भी अपना वोट कास्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है कि किसी का वोट मुस्तरद हो चुका है या किसी का वोट ज़ाया हो चुका हो। जी। अच्छा, 102 के करीब आप कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद के वोट बनते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो जो दावा कर रहे हैं उसमें तो कुछ सदाकत नज़र आ रही है, लेकिन जो अपोजिशन दावा कर रही है दीगर अरकान को अगर देखा जाए तो वो फिर किस बुनियाद पे दावा कर रही है कि वो 4 सेनेटर्स निकाल लेंगे, 5 सेनेटर्स निकाल लेंगे, हत्ता कि 6 सेनेटर्स निकाल लेंगे? उनके दावे की बुनियाद क्या है फिर? इसमें जो ना सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तादाद बनती है यहाँ पे तकरीबन 45, तो 45 अरकान पे जो ना उनकी ये कोशिश होगी कि वो आसानी के साथ 2 जनरल नशिस्तें तो निकाल सकते हैं अपोजिशन की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो ना वो मेरिट के मुताबिक भी होगा। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि PDM के अंदर जो है ना अब 3 जमातों ने जनरल नशिस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें JUI शामिल है, जिसमें ANP है और नून लीग का जो अब्बास अफरीदी है। तो इस सूरत हाल में जो ना यहाँ पे बड़े टफ कंपटीशन हो रहा है उस वक्त, और उस टफ कंपटीशन में हुकूमत के जो बाप के उम्मीदवार हैं ताज मोहम्मद अफरीदी वो भी शामिल हैं। इसी बुनियाद पे अपोजिशन का ये भी दावा है कि चूंकि आप तो 2 नशिस्तें आसानी के साथ जीत सकते हैं और 45 पे जो ना हम टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त भी निकाल सकते हैं और खवातीन। ठीक है, तारिक आफाक साहब साथ ही रहिएगा। शौकत यूसुफ जई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि क्यों यहाँ पर पोलिंग का अमल इतना सुस्त रवि का शिकार है? देखिए, ये तो जाहिर है जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतजाम किए होंगे ये तो उसी का प्रोसेस है। दूसरा ये कि जो एक तो थोड़े से बैलेट पेपर 4 हैं, उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। जो ज्यादातर नए लोग हैं, पहली दफा वोट कास्ट कर रहे हैं, तो सेंसिटाइज भी हुए हैं, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज हमने जो पुराने लोग हैं, हमने तो आधा मिनट भी नहीं लिया उस पर जाके, अब माइंड बिल्कुल क्लियर था कि किसको वोट देना है, बस दिया और वहां से निकल के आ गए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि जो बहुत सारे लोग जो रह गए हैं वो प्रेमिसेस के अंदर हैं, और जब पता है कि जब प्रेमिसेस के अंदर हो शायद उससे कितना भी टाइम लगे वो वोट कास्ट होंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपके 26 अरकान ने वोट नहीं डाला है, क्या वजह है, कहाँ पर है वो? नहीं, हमारे तो सारे मेम्बरान वहाँ मौजूद है, वो लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। आपको पता है कि वहाँ जो असम्बली हाल है वहाँ पूरे वो भरा हुआ है, जो नशिस्तें भरी हुई हैं, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने उसके। लेकिन कुछ मेम्बरान असम्बली की तरफ से भी स्लो वो हो रहा है, वोट डालने का जो प्रोसेस है वो भी स्लो है, लेकिन कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी स्लो है। ये होना ये चाहिए था कि या तो 2 बूथ बना लिए जाते और या फिर ये कि कोई ऐसा सिस्टम होता कि इसमें टाइमिंग होती कि इतने टाइम में इतने
लेकिन बहरहाल अब तो इंशाल्लाह लेकिन सिर्फ 45 मिनट का तकरीबन वक्त रह गया है। 5 बजे के बाद तो जो लोग बाहर होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे, वो तो वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे। जी, लेकिन इस वक्त बाहर बहुत कम है। इस वक्त जो ज्यादातर लोग हैं वो इन हो चुके हैं, प्रेमिसेस के अंदर ही हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि लोग हैं, हम तो जानते हैं उनको, तो हमारे जितने भी दोस्त साथी हैं वो सारे प्रेमिसेस के अंदर ही हैं। और मैं वजीर आला साहब भी अभी तक उधर ही थे, मैं भी था। और आप कह रहे हैं कि वोट कास्ट कर देंगे 5 बजे से पहले। अच्छा ये बताइएगा शौकत यूसुफजई साहब, महमूद खान साहब तो ये कह रहे हैं कि 10 के करीब सेनेटर्स आज मुंतखब हो जाएंगे, 12 टोटल सेनेटर्स यहाँ से मुंतखब होने हैं। आपके ख्याल में कितने सेनेटर्स मुंतखब हो रहे हैं आज? देखिए 12 तो मुंतखब हो रहे हैं, तो असल चीज है ना जिससे मैं क्योंकि मैं जर्नलिस्ट पे रहा हूँ, तो जो तज्जिया मेरे सामने आ रहा है, एक तो ये कि हमारे जो हमारे उम्मीदवार थे उसके मुताबिक जो हमारे वोट थे उसके मुताबिक तो हम तकरीबन जो नशिस्त हमने बराबर की थी 10 के 10, वो तो हम आराम से जीत रहे हैं। लेकिन जो एक चीज जो मुझे डेवलपमेंट नजर आई है वो ये कि जो अपोजिशन के पास 2 मेंबरान के जीतने के चांसेस थे, लेकिन उन्होंने 3 खड़े कर दिए। जनरल नशिस्त की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब उन्होंने 3 खड़े किए हैं तो वो वोट उनका डिवाइड होता जा रहा है, और जब वो वोट डिवाइड होगा उसका पूरा फायदा पीटीआई को होगा और उसके को होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारी एक सीट बढ़ भी सकती है। उसमें जो सबसे ज्यादा जो है वो ये कि जो पीडीएम है वो इस वक्त इंतशार का शिकार है और काफी मायूसी है उनके, उसमें मैं देख रहा था अभी, और जो उनके उम्मीदवार है उनसे भी मिलता रहा, क्योंकि हम असेंबली के अंदर हम बैठे हुए थे तो सारे जो JUI, ANP और सब इकट्ठे हम बैठे हुए थे। तो वो जो बात कर रहे थे उसने कहा ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, लेकिन नून लीग का जो उम्मीदवार है वो मान नहीं रहा था। हमने बड़ी कोशिश की कि इनको हम बिठाएं, लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने कहा, मैं तो हम गपशप लगाते रहे, मैंने कहा फिर सर आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम के उम्मीदवार मायूस हैं, आपसे गुफ्तगू हुई है इनकी, वजह क्या हो सकती है इस मायूसी की? मायूसी की वजह यही है ना कि जैसे JUI वाले अगर जहाँ बैठे हैं उससे बात करो तो वो कहते हैं जी नून लीग ने बड़ी ज्यादती की। अगर NP वालों से बात करें तो वो भी कहते हैं नून लीग ने बड़ी ज्यादती की, उनका हक नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने जो है ना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो उसका मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि 1900 पॉइंट्स होते हैं, 19 वोट चाहिए था एक जनरल सीट के लिए, लेकिन जब इन्होंने 3 खड़े कर दिए तो वो जो है वो लगता मुझे ऐसा है कि 15 या 14 के ऊपर भी आ सकता है। तो फिर जो है ना फिर हमारी जो है ना अददी अक्सरियत फिर आ जाएगी, और क्योंकि हमारे जो सेकंड वोट है वो भी काफी है तो वो भी उसको फायदा देगी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि हमें एक सीट इजाफी भी मिल जाए। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह पंजाब में एडजस्टमेंट कर ली गई, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में भी इसके लिए कोई कोशिशें की गई थी शौकत यूसुफजई साहब? देखिए हमें इसके बावजूद कि हमें अपने का भी पता था, हम बार बार कह रहे थे, और मैं एक ही मकसद था कि किसी तरीके से ये हार्स ट्रेडिंग और ये जो लोग खड़े हो जाते हैं कि जिनके सामने वो यानी उनको पता होता है कि जी 5-6 वोट है, वो कहते हैं जी हम अपना सेनेटर खड़ा करते हैं, बाकी कहाँ से लेंगे जी, हम खरीदेंगे। ठीक है शौकत यूसुफजई साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जिस तरह महमूद खान आपके वज़ीर आला कह रहे हैं कि 10 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और इसी तरह से शौकत यूसुफजई साहब का ये ख्याल है कि 10 की जगह वो 11 सेनेटर्स भी मुंतखब करवा सकते हैं। तो एक और अपडेट सामने आ रही है, सिंध असेंबली में खुर्रम शेर